Hello and welcome, dears. You are very welcome in our online study program in English in class 9. So, dears, we are in the second lesson of our book Movement, and the lesson name is The Adventures of Toto. It is written by Ruskin Bond. In the previous lecture, we learned that how did the grandfather buy a Toto from a Tonga driver? How did he keep a secret of the presence of Toto from the grandmother? And when the grandfather went to Saharanpur to collect his pensions, he took the Toto with him, and what type of behavior did Toto show in the railway station? And how did the ticket collector or the ticket clerk give his reaction after seeing the Toto? So we should start. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब तक पहले ग्रैंडमदर से एक सीक्रेट रखा गया था, लेकिन जब ग्रैंडमदर से ने एक्सेप्ट कर लिया था टोटो को, जब उसे बताया गया था कि टोटो नाम का एक बंदर को पाला गया है ग्रैंडफादर के द्वारा, तो ग्रैंडमदर ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, उसे एक स्टेबल में एक कंफर्टेबल होम दिया गया. When he had for a competition the family donkey companion Nana, where जहां पर he had for a companion the family donkey Nana, तो वहां पर उसको किसके साथ रखा गया? जो उनके फैमिली का एक डोंकी था नाना, जिसका नाम नाना था, उसके साथ उसको रखा गया. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अब जब पहली बार उस अस्तबल में नाना जो डोंकी था उसके साथ जब टोटो फर्स्ट नाइट वहां पर रहा, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल. तो ग्रैंडफादर उसे देखने गए कि क्या उसे कंफर्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है स्टेबल में. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. To his surprise, जैसे वो देखते हैं स्टेबल में जाके, तो उनको एक सरप्राइज होता है. He found Nana, उन्होंने देखा कि नाना without apparent cause, बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के, pulling at her halter and trying to keep her head, वह अपने आप को धकेल रहा था नाना, और अपना जो हेड था उसको दूर रखने की कोशिश कर रहा था, as far as possible from a bundle of hay, जो वहां पर घास पड़ी हुई थी उसके बंडल से, उसके ढेर से वो अपने आप को दूर कर रहा था. ग्रैंडफादर gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, और ग्रैंडफादर ने थोड़ा सा उसकी haunch को थपथपाया and she jerked back, और जो नाना था वह पीछे की ओर मुड़ा, उसको झटका लगा. Dragging Toto with her, he had fastened on her to her long ears with his sharp little teeth. वो क्या कर रहा था? अपने शार्प लिटिल टोटो अपने शार्प लिटिल टीथ से उसके कानों को काट रहा था. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड. टोटो और नाना कभी फ्रेंड नहीं बन पाए. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. A great treat for Toto during cold winter evenings. तो जो ग्रेट कोल्ड विंटर के इवनिंग्स में was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. तो क्या करती थी जो ग्रैंडमदर थी, वो एक बड़े से बर्तन में गर्म पानी रखकर टोटो को देती थी जिससे कि वह नहा सके. He would cunningly test the temperature with his hands. पहले वो क्या करता था? अपने हाथ से उसका टेम्परेचर टेस्ट करता था पानी का. Then gradually step into the bath. तब धीरे धीरे उस बर्तन में वह नहाने के लिए जाता था जिसमें पानी भरा होता था. फर्स्ट वन फुट, पहले एक पैर डालता था, देन द अदर, फिर दूसरा पैर डालता था, as he had seen me doing, जैसे कि वो मुझे करते हुए देखता था. Until he was into the water up to his neck, और धीरे धीरे वो अपनी गर्दन तक पानी के अंदर चले जाता था. Once comfortable, जब एक बार उसे आराम मिलता था, he would take the soap in his hands or feet, फिर वो अपने हाथों में साबुन लेता था, and rub himself all over, और पूरी बॉडी को अपने मलता था, रब करता था साबुन से. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. When the water became cold, जब वो पानी जिसमें वो नहा रहा होता है, जब वो क्या होता था? पानी ठंडा हो जाता था. He would get out, वह बाहर निकलता था, and run as quickly as he could, और फिर बाहर निकलते वो जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ता था. To the kitchen fire में, जो किचन में उनकी आग जली होती थी उसके फायर में हो जाता था.
इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए. इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और जब ऐसा करते हुए उसे देखकर जब कोई उस पर हंसता था, टोटो's feeling would be hurt, टोटो की फीलिंग्स हमेशा हर्ट होती थी. एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और ही वुड रिफ्यूज, और वो मना कर देता था, टू गो ऑन विद हिज बाथ, वो अपने बाथ से, वह नहाने से मना कर देता था. वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन उसने लगभग अपने आप को जिंदा ही बॉईल कर दिया था. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. एक बड़े से बर्तन में एक दिन पानी रखा हुआ था आग के ऊपर, पानी गर्म हो रहा था जिससे कि चाय बन सके घर के लिए और टोटो के नहाने के लिए पानी उसके. Finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब उसके पास काम करने, टोटो के पास कुछ करने को नहीं था, उसने क्या कर दिया, उसके ढक्कन को हटा दिया, उस बर्तन के ढक्कन को हटा दिया. Finding the water just warm enough for a bath, he got in, और उसने देखा कि पानी नहाने लायक है, तो वह उसके अंदर चले गया. With his head sticking out from the open kettle, और उसने उसके अंदर झांका. This was just fine for a while until the water began to boil, और फिर वो वहीं रहा जब तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ उस बर्तन के अंदर. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. तो टोटो ने जब उसे लगा कि वो थोड़ा सा जब पानी उबलने लगा, तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने अंदर बाहर की ओर आना स्टार्ट कर दिया. लेकिन जैसे वो बाहर की ओर आता तो उसे ठंडा लगता, फिर वो नीचे की ओर और चली गया उसी बर्तन में. He continued hopping up and down for some time, और वो नीचे ऊपर करता रहा उसी बर्तन में, कहीं बाहर आता और कभी अंदर जाता. Until grandmother arrived and hauled him, जब तक कि ग्रैंडमदर अंदर नहीं आई और उसे पकड़ा नहीं out of the kettle, और फिर उसे बाहर निकाला गया. If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. If there is a part of the brain, अगर वहां पर कोई ब्रेन था स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, किसी भी दुर्घटना के लिए, that part was largely developed in Toto, और वह पार्ट जो था टोटो के अंदर बहुत अच्छी तरह से उसके माइंड में सेट हो चुका था. He was always tearing things to pieces, वो हमेशा चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देता था. Whenever one of my aunts came near him, जब भी कोई हमारी पड़ोस की महिलाएं उसके सामने आती, उसके पास आती, he made every effort to get hold of her dress, वो उनके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करता, and tear a hole on it, और उस पर एक होल बनाता, फाड़ देता उनके कपड़ों को. One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of dining table, और एक दिन लंच टाइम पर एक डाइनिंग टेबल के बीच में एक बड़ा सा बर्तन रखा था जिसमें पुलाव रखा गया था. वे एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, और अब जैसे अंदर आए तो हमने देखा कि वो क्या कर रहा है, उसके साथ उस राइस के साथ उस पुलाव के साथ खेल रहा है. माय ग्रैंडमदर स्क्रीम्ड, मेरी ग्रैंडमदर चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू ए प्लेट ऑन हर, तो टोटो ने क्या किया, एक प्लेट पकड़ी डाइनिंग टेबल से और उसके ऊपर को फेंका. वन ऑफ माय आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, और मेरी एक जो पड़ोस की आंटी थी वह वहां से भागने लगी. एंड रिसीव्ड अ ग्लास इन ऑफ वाटर इन द फेस, और उसने क्या किया, एक पानी का ग्लास पकड़ा और एक ग्लास से पानी पकड़ा और उसके बाद फेंक दिया. Once of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandmother arrived, जब grandfather पहुंचे, Toto picked up the dish of pulao and made him exit through a window. तो टोटो ने क्या किया, उस पुलाव के बर्तन को पकड़ा और विंडो से वो बाहर चले गया. We found him in the branches of the jackfruit tree. उसके बाद हमने उसे देखा कि वह जैकफ्रूट ट्री के पेड़ में जाकर बैठ गया है. The dish still in his arms, वह जो बर्तन था पुलाव का वो उसके हाथों में था. He remained there all afternoon, वो पूरे आफ्टरनून वहां पर रहा. Eating slowly through the rice, और वो धीरे धीरे उस राइस को पुलाव को खाता रहा. Determined on finishing every grain, और धीरे धीरे उसने सोचा कि उसने डिटरमाइन कर लिया, ऐसा लग रहा था कि उसने डिटरमाइन कर लिया कि वो पूरे पुलाव को खाएगा. And then in order to strike grandmother who had screamed at him, और वो क्या करता था, जैसे वो ग्रैंडमदर उस पर चिल्लाती थी, he threw the dish down from the tree, जैसे वो ग्रैंडमदर उसको चिल्लाई बाहर आकर, तो उसने क्या किया, वो डिश को उसकी ग्रैंडमदर के ऊपर को फेंक दिया. And chattered with delight when it broke into 100 pieces, और जब वो डिश नीचे में गिरकर 100 पीसेज में टूट गई थी तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ. Obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long, और रस्किन बॉन्ड बोलते हैं, नरेटर बोलते हैं कि टोटो एक ऐसा प्राणी नहीं था जिसे हम लंबे समय तक अपने पास रख सके. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट, और ग्रैंडफादर को भी यह फील हो चुका था. We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes. We were not
We were not well to do and could not afford the frequent loss of pieces. अब हम बहुत ज्यादा चीजों को खो भी नहीं सकते थे, क्लॉथ्स, कर्टेन्स, वॉलपेपर्स, जितने भी वो सब कुछ फाड़ देता था तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टॉमा ड्राइवर, तो फिर ग्रैंडफादर ने उस टॉमा ड्राइवर को ढूंढा जिससे उन्होंने उसे खरीदा था. एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज, और फिर उसे 3 रुपए में बेच दिया, जबकि ग्रैंडफादर ने उसे 5 रुपए में खरीदा था और लेकिन फिर वापस उसे 3 रुपीज में उसे बेच दिया. सो डियर्स, इट वाज आवर सेकंड लेसन एंड यू विल हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड watch the video, try to understand the lesson, try to learn everything and submit your work at time. Thanks, have a nice day.